Yes, question is there, fill in the blanks. We live in a society because we are blank on other for fulfillment of our needs. And the right answer is dependent. We live in a society because we are dependent on other for fulfillment of our needs. Now next question, and that is, house in hilly area have blank roof. House in hilly area have blank roof. Yes, very fast answer by you all students. It's very difficult to announce your name again and again. Thank you to all. Yes, Shreya, Ayush, so many students wrote the right answer of the question. Thank you. So houses in hilly area have sloping roof. Houses in the hilly area have sloping roof. Now next question is there. A stilt houses protect the blank from wild animals. Yes, once again listen the question. A stilt houses protect the blanks from wild animals. Yes, right answer is inhabitants. Inhabitants is the right answer. ठीक है, सबने इनहेबिटेंट अगर लिखा है तो वो आंसर सही है. अगर इनहेबिटेंट नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. we can organize blank pool with neighbors. Yes, this is the filling of the blanks. So you can organize blank pool with your, yes, write down. Very fast answer by you all students, but some students have written wrong answer. Yes, answer is there. Carpool. देख लोगे, कारपुल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. in cities flats are common because of in cities flats are common because of blank land and many people. In city, flats are common because of blank lands and many people. Right answer is
Right answer is limited. Okay, limited is the right answer. Okay, limited is the right answer. Now open your book, page number 54. Open your book, page number 54, where you have to complete short question C, that is write whether true or false. Okay, then first question is there, huts were the earliest form of man-made shelter. Is it true? Huts were the earliest form of man-made shelter. Yes, waiting for your answer. चलो पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझोगे। कह रहा है कि क्या वो जो हट्स है, झोपड़ी है, वो आदमी के द्वारा मैन-मेड शेल्टर, पहला आदमी के द्वारा बनाया गया शेल्टर है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। याद करो, केव्स एंड हट्स, तो केव्स वर नॉट मैन मेड, इट्स द गॉड गिफ्टेड, ओके, बट मैन मेड हट्स एज देयर शेल्टर, झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिए। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि जब उन लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की, तो सेटल्ड लाइफ की शुरुआत एग्रीकल्चर के साथ हुआ। खेती की कला जब उन लोगों ने सीखा तो एक साथ रहने लगे, और जब रहने लगे तो वो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड लीफ की सहायता से और मड यूज करके, है ना, वो अपना घर बनाने लगे, हट्स, झोपड़ी। और यही जो है वो है मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड शेल्टर, यही हट्स है। केव जो है वो गॉड गिफ्टेड था, ये आदमी ने नहीं बनाया था। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर, भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर आर 90,000 year old. Is it true? Is it true? Write on. Bhimbetka rock shelters are, Bhimbetka rock shelters are, Bhimbetka rock shelters are 99,000 year old. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था कि भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में है, ये 9,000 साल पुराना है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो शेल्टर पाए गए हैं, केव पाया गया है, उसकी संख्या 700 है, और उसमें जो पेंटिंग है उसकी संख्या कितनी है? पेंटिंग की संख्या कितनी है? 400 है। क्लियर? और कुछ पूछना है इसमें? ये पूरा मैंने बतला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इज इट ट्रू और फॉल्स? The houses in hilly area have flat roof. Houses in the hilly areas have flat roof. Is it true or false?
जो हाउसेस हिली एरिया में हैं वो फ्लैट रूफ है उनका, उसका ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। याद करो मैंने पढ़ाया था हिली एरिया और आइस फॉल एरिया जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होता है, वैसे एरिया में जो घर बनाए जाते हैं वो होते हैं क्या, वो होते हैं स्लॉप रूफ वाले, ताकि वहाँ पानी का जमाव ना हो, बर्फ़ ज़्यादा न जम जाए, ऐसा होने पे घर गिरने का डर होता है। तो क्लियर है, आंसर फॉल्स होगा। द हाउसेस इन हिली एरिया हैव फ्लैट रूफ, ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, we must never help our neighbors in case of emergency. Is it true or false? We must never help our neighbors to in case of emergency. पड़ोसियों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा ट्रू है, बहुत अच्छा। ट्रू कैसे होगा भाई? हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और संकट में उनका साथ देना चाहिए, ऐसा हमने बताया था। फॉर बीइंग अ गुड सिटीजन, है ना, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम जब भी आवश्यकता पड़े तो अपने पड़ोसियों की मदद करें। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। अब इसका तो आंसर बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। क्या कह रहा है कि द मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। सड़क पे कूड़ा करकट फेंकने में बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करते हैं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, कोई झिझक नहीं, सड़क पर से उठाकर कूड़ा करकट फेंक दिया। यह सेंटेंस सही है या गलत है? पहले के लिए तो ये सही था, लेकिन अब गलत भी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि अब तो भाई स्वच्छता मिशन चलाए गए हैं, बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं, अब कूड़ा करकट ऐसे नहीं फेंका जाता है। लेकिन हकीकत है कि कूड़ा करकट पहले तो ऐसे ही फेंका जाता था, घर बैठे लोग अपना कूड़ा फेंक दिए, चाहे वो दूसरे के सर पे गिरे या जहाँ गिरना है वहाँ गिरे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो है तो ट्रू, लेकिन अधिकतम लोग ऐसे नहीं करते हैं। अब लोगों की संख्या कमी है, अब लोग पढ़ लिख करके समझदार हो गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन में उनका भी सबका पार्टिसिपेशन है, तो ऐसा कचरा अब लोग नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस अगर देखते हैं तो बुक देखो पेज नंबर 22, सारे लोग, यू ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 22। वहाँ पे लिखा है कि मोस्ट पीपल कीप देयर होम नीट एंड tidy फ्रॉम इनसाइड। अधिकतम लोग क्या करते हैं कि अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। लेकिन कूड़ा कचरा को सड़कों पे फेंकने में उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होती है ना। अपना घर का कचरा साफ़ किया और बाहर में फेंक दिया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के आधार पे जो है वो क्या है, वो सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या होगा? ट्रू होगा। तो सारे लोगों का आंसर ट्रू होना चाहिए, ट्रू लिखोगे। ठीक है,
बुक ने ट्रू कह दिया तो ट्रू है, बात सच है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से अब ऐसा हुआ है इधर 2-4 सालों में कि लोगों में जागृति आई है और लोग ऐसे कूड़ा कचरा को अब नहीं फेंक रहे हैं, अब एक प्रॉपर वे में जाकर रख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। नाउ D1 देखोगे सारे लोग। D1, व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ शेल्टर? सबको पता है, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी जस्ट नाउ कि व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ शेल्टर। मैन मेड जो था वो सेकंड स्टेज है, अर्लीस्ट फॉर्म जो है वो केव है। सो राइट डाउन केव वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर। व्हाट वाज की जगह पे कर दो केव वाज, बाकी आंसर वही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। व्हाट के जगह पे क्या कर देना है, केव कर देना है। What are the walls of hut made in village? गांव में जो घर बने होते हैं उसका जो दीवार है वो दीवार किस चीज़ का बना होता है? बोलोगे? वो दीवार किस चीज़ का बना होता है? बताए थे ना, मड एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड लीफ। वो जो हट्स बनता है वो मड यूज होता है, और मड मतलब कीचड़ मिट्टी, और दूसरा जो है वो पेड़ों की टहनियों को काट काट के पत्तियों को डाल करके वो सारे लोग घर बनाते हैं, बनाते थे, है ना। और आज भी जो गांव में रह रहे हैं वो बनाते हैं, कह सकते हैं उन्हें। वाई आर सम हाउसेस बिल्ट विथ थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ? आंसर बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे हम। तो हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको, अपार्टमेंट की बात कर रहे थे, लैंड एरिया की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे इसका आंसर था, देख लो पेज नंबर 19 देख लो, पेज नंबर 19 देख लो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इन प्लेन हाउसेस आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ टू कीप देम कूल इन समर। ठीक है, तो यही सेंटेंस तो आंसर बनकर आ जाएगा। गर्मी में ठंडा रखने के लिए दीवारों को मोटा करके बनाते थे, थिक वॉल होता था। ठीक है, और दूसरी बात है, द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स, और उसमें सीमेंट एंड ब्रिक्स मटेरियल भी लगे होते हैं। ठीक है, घर का छत बनेगा तो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गिव टू एडवांटेज ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज अपार्टमेंट के क्या एडवांटेजेज हैं? जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बना हुआ है उसको देख लो, पेज नंबर 19 में देख लो। क्या है भाई कि लिमिटेड लैंड, ज़मीन कम है, और मैक्सिमम ज़मीन कम है, लिमिटेड लैंड है, और पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, यानी रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो दो रीजन क्या बताएंगे, लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो
एडवांटेजेस लिख लिए आप क्वेश्चन 4 का आंसर। और व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेबरिंग्स व्हेन ये नेबरहुड वॉच प्लान, ये क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में करवा देंगे। और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम ऑफलाइन क्लास में करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पढ़कर रखोगे।